Just wait. Huh? Okay, recording is started. So let's start the today's session. First, we'll revise what we have done in the last session. Then we'll go ahead with the next topic. Okay. In the previous session, we gone through the different interfaces in the JSON. Okay. First, let me revise and let me remind you people that we are running and we are learning the chapter that is GSM. Okay. And I told you that this chapter this chapter contain one topic that is JSM, which covers the major part, which covers the major portion of this chapter. Okay. And at the initial level, we started with the architecture, that is JSM architecture, which consists of the RSS, NSS, and OSS. After that, we saw the architecture basically, which is having the mobile station section, then basic station subsystem, then network switching subsystem, and operating support subsystem. In all section which covers this architecture, I start with the mobile station, then we have a BTS, that is base transceiver station, then we have a base station controller, and then we are having MSC, which is the main, which we can say the heart of the GSM architecture, which is having five modules, which is having five components, which are responsible for maintaining all the information of users. Okay, all relevant information of the users. Okay, and your MSC is also connected with the public network with the help of the gateway. Okay, if you have any communication which is going towards the mobile the which is going towards the public network, then with the help of the gateway we can go to the public network via MSC. Okay, so if there's any call, if there's any communication which is going to the public network, then via BTS, BSC, MSC, and by storing all the required information, it will be forwarded to the public network. Okay, you can see from this mobile station to the BTS, from this BTS to BSC, from this BSC to MSC. MSC will store all the relevant information in HLR, VLR, EIR, whatever it has to do, it will do all those required things, and then the call will be forwarded to the public network. It is going to the landline, as it is going to the landline network. Okay, so it was the architecture. We saw all the major part of this, that is the radio subsystem, which consists of BSS. Again, BSS consists of BTS and BSC. After that, we have mobile station, and then the next part is network and switching subsystem, which consists of the MSC, HLR, and VLR. And after that, operating support subsystem, which consists of OMC and AUC, that is authentication center, then EIR, that is equipment identity register. Okay, so it was all about the architecture. Then we saw the interfaces. We are having mobile user interface, that is one interface. Then we have Abyss interface, which support two different links, 64 kbps and 16 kbps links. And these links are for the these links are for carrying the voice and user data, and second is for carrying the control information from BTS to BSC. Okay, then A interface from BSS to the MSC, and it was a diagram last we have seen. Okay, now the next part we are having, which is again related, because all the topic we are going to learn step by step, all are related to the GSM only. Okay, so all the things are related to the GSM, so हमको GSM का जो previous diagram है हमको भूलना नहीं है. Okay, we have to come back to this diagram again and again. Okay, so let us move to the next topic, that is logical channels. Okay, now we'll see what are the different logical. ये टॉपिक उतना कुछ पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को एक चीज़ पता होनी चाहिए. अगर पूछ लिया, so it will help you to fill the page. Okay, so the logical channels which are there in the GSM. Okay, now what is this logical channel and how they are categorized? इसके दो types हैं. One is the traffic channel and second is the control channel. Okay, so our GSM is specified two basic groups of logical channels. Okay, one is the traffic channel, you can see over here. One is the traffic channels and second is the control channel. Okay, so यहाँ पर मैंने एक Excel sheet बनाया हूँ. So you need to see this sheet also. Okay, तो देखो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग types हैं. Okay, and all those types you can't remember. So I made one, that is logical channel over here. Okay, after this logical channel we have two groups of logical channel. You can see
These are two basic groups of logical channel. One is the traffic channel, second is the control channel. So traffic channel and control channel. Okay. Now in traffic channel में क्या है? We will write over here. And control channel में कौन-कौन से channel है? We'll write over here. Okay. So that you can easily understand the thing. You can easily categorize the things. Okay. Now let us start. लेट अस स्टार्ट विद द ट्रैफिक. ओके, ट्रैफिक चैनल उतना कुछ नहीं है, बस ट्रैफिक चैनल का जो फर्स्ट है वो ये है कि इन जीएसएम द ट्रैफिक चैनल यूज टू ट्रांसमिट द यूजर डेटा. ओके, अब यूजर डेटा जो भी आपकी वॉइस है या आपका जो डेटा है उसको जो भी लेके जाना है तो ट्रैफिक चैनल आपका काम करने वाला है. ओके, सो वी हैव फर्स्ट ग्रुप ऑफ लॉजिकल चैनल. वन इज द ट्रैफिक चैनल and this traffic channel uses TCH. तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाला, हर एक चैनल का हम लोग यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, TCH. एंड फिर आपके कंट्रोल चैनल को CH. ओके, और जितने भी टाइप्स है उसको हम लोग शॉर्ट में यूज करने वाले हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस abbreviation. So the first is traffic channel which uses for example, sorry, the GSM uses the traffic channel. आपका जो GSM है वो ट्रैफिक चैनल को यूज क्यों करता है? यूज टू ट्रांसमिट द वॉइस. ओके, आपके डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए. देखो मैंने पहले भी बताया था कि इन योर लाइक योर एफटीपी में आपका कैसा होता है? एफटीपी के अंदर आपके दो चैनल्स होते हैं, एक होता है डेटा चैनल और एक होता है कंट्रोल चैनल. सो डेटा चैनल के थ्रू आपका डेटा ट्रैवल करेगा और आपका जो कंट्रोल चैनल है इट विल हैंडल द कम्युनिकेशन लिंक. ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका एक एफटीपी प्रोटोकॉल है तो एफटीपी प्रोटोकॉल में ऐसे होता है, तो उसके अंदर एक चैनल, एक जो लिंक होती है वो आपके डेटा को सेंड करने के लिए होती है और दूसरी जो लिंक होती है दैट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द लिंक. ओके, तो वो आपके कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए होती है. ओके, कब इस्टेब्लिश करना है, कब टर्मिनेट करना है, कुछ अगर प्रॉब्लम आया तो उसको रिकवर करना है, ऑल दैट. ओके, सो वैसे यहाँ पर भी है. ओके, so the first is traffic channel which is used to transmit user data, the basic thing. Okay, यूजर डेटा को कैरी करने के लिए ट्रैफिक चैनल यूज होता है which is a part of which is a group of logical channel. Okay, टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ ट्रैफिक चैनल. अब देखो ट्रैफिक चैनल में दो बेसिक कैटेगरीज है, वन इज द फुल रेट TCH एंड सेकंड इज द हाफ रेट TCH. ओके, सो विल राइट, यहाँ पर लिख दिया हम लोग full rate TCH. I will write TCH, that is a traffic channel, TCH. Okay, so full rate TCH and second is the half rate TCH. Okay, so remember this thing. The full rate TCH जो है आपका, your full rate TCH has a data rate of 22.8 kbps. Okay, और हाफ रेट का उसको सीधा सीधा हाफ कर लो तो 22 का हो गया 11, 8 का हो गया 4, सो 11.4 kbps. ओके, सो इनके सिर्फ डेटा, बिकॉज ये आपका डेटा कैरी करने के लिए यूज करते हैं, दो लिंक्स यूज होती हैं, दो अलग अलग चैनल्स में यूज होते हैं. ओके, सो फुल रेट के अंदर वी आर हैविंग 22.8 kbps. ओके, थोड़ा स्मॉल लेता हूँ, kbps. ओके, इन योर हाफ रेट TCH we are having 11.4 kbps. Okay, so just for the remembering purpose. Okay, so जो आपके ट्रैफिक चैनल में खाली इतना ही है, थोड़ा सा मेन जो है वो आपके कंट्रोल चैनल में. ओके, सो ट्रैफिक चैनल क्या करता है? बेसिकली आपको दिमाग में क्या रखना है, ट्रैफिक चैनल आपका जो GSM सिस्टम है जो ट्रैफिक चैनल को यूज करता है अपने डेटा को कैरी करने के लिए. ओके, अपने डेटा को ट्रांसमिट करने. GSM uses this traffic channel to transmit your data और transmit user data. ओके, वॉइस हो गया, डेटा हो गया, तो इसको क्या करने के लिए, कैरी करने के लिए यूज करते हैं. उसमें दो लिंक्स है, हाफ रेट, फुल रेट, दोनों की स्पीड है. दैट्स ऑल फॉर द ट्रैफिक चैनल. ओके, आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज कंट्रोल चैनल. ओके, द नेक्स्ट पार्ट यू कैन सी ओवर इज कंट्रोल चैनल. ओके, पहला वाला हमारा ग्रुप हुआ ट्रैफिक चैनल का जो कि बहुत ही शॉर्ट था. सेकेंड वन इज द कंट्रोल चैनल. कंट्रोल चैनल आपका जो यूज होता है वो आपके मीडियम को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है. ओके, जिस मीडियम से आपका डेटा ट्रैवल करेगा उस मीडियम को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल चैनल्स यूज होते हैं. ओके, डिफरेंट कंट्रोल चैनल, CCH कंट्रोल चैनल, CCHs आर यूज्ड इन GSM सिस्टम टू कंट्रोल मीडियम एक्सेस. ओके, आपके मीडियम के एक्सेस को कब किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है, एक गया दूसरे को नहीं भेजना है, एंड ऑल दैट. ये आपके एक्सेस को कंट्रोल करना होता है. ओके, सो मीडियम के अंदर कोलिजन ना हो उसके लिए फिर आपको भी सोचना है ना, तो उस मीडियम के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल चैनल यूज होता है.
Okay, so GSM system uses this control channel to control the medium access. नंबर टू एलोकेशन ऑफ ट्रैफिक चैनल, एलोकेशन ऑफ ट्रैफिक चैनल, आपकी जो ट्रैफिक आपके जो डेटा आ रहा है ना, तो उनको कहाँ कहाँ कौन से, आपको हो सकता है आपके मीडियम के अंदर कोई एक चैनल तो होगा नहीं, ओके, मतलब कोई एक रास्ता तो रहेगा नहीं, जैसे होता है ना हमारा हाईवे होता है, वी आर हैविंग मल्टीपल लेन्स ऑन अ सिंगल हाईवे, ऑन अ सिंगल साइड, चार चार लेन होती है हाईवे पे। सो हमारा जो मीडियम है, मीडियम के अंदर भी तीन तीन चार चार नंबर ऑफ लेन्स हो सकती है, नंबर ऑफ मीडियम चैनल्स हो सकते हैं। तो आपके कौन से डेटा को, कौन से ट्रैफिक को किस चैनल पे, किस लिंक पे फॉरवर्ड करना है, तो ये भी आपका काम कंट्रोल चैनल करेगा। पहला काम तो पूरे ऑल ओवर आपका जो मीडियम है उसके एक्सेस को कंट्रोल करना। नंबर टू एलोकेशन ऑफ ट्रैफिक चैनल, ओके, नंबर टू। नंबर थ्री मोबिलिटी मैनेजमेंट, ओके, मोबिलिटी बेसिकली मोबिलिटी रिफर्स टू अ मोबाइल स्टेशन विच इज ऑन द मूव, ओके। सो मोबिलिटी मैनेजमेंट यानी कि आपके मोबाइल स्टेशन विच इज ऑन द मूव, विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन फॉर XYZ रीजन, you have to provide proper service to that particular mobile station at any cost, okay। so this is the mobility management। mobility management में आपका मोबाइल स्टेशन एक जगह रुकने वाला तो नहीं है, उसके पास में मोबाइल फोन है, ओके। so he or she is traveling, or the person is traveling, or the user is traveling from one location to another location, okay। सो लिटरली वो यहाँ से वहाँ मूव करेगा तो आपको उसको ट्रैफिक वहाँ पर भी सॉरी आपको वहाँ पे सर्विस वहाँ पर भी प्रोवाइड करना है, यहाँ पर भी प्रोवाइड करना है। सो मूविंग हेयर एंड देयर, बट उसको आपको प्रोवाइड करना है। सो दैट इज द इट रिफर्स टू द मोबिलिटी मैनेजमेंट। आते हैं आपके अभी तो हमारा कंट्रोल चैनल में अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी, ओके। So the one is broadcast control channel, that is BCCH, okay, BC BCCH, okay, that is broadcast control channel। मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ, आप उसको बाद में फुल फॉर्म कर लेना। अब आपका BCCH क्या काम कर रहा है, okay। So a BTS uses this channel to signal information to all the mobile station within the cell। अब देखो, अब आपको वापस से जाना पड़ेगा वही डायग्राम, ओके। डायग्राम में जाते हैं दोबारा, बस थोड़ा सा एक बार रिकैप मारते हैं, ओके। सो दिस इज योर मोबाइल स्टेशन, योर मोबाइल स्टेशन इज कनेक्टेड with your BTS, that is base transceiver station, okay। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि you are having different areas, and in different areas one BTS will be situated। so we have this area, that is the पनवेल area, okay। so this is the पनवेल area, ये हमने कंसीडर कर लिया हमारा पनवेल एरिया, okay। in the whole पनवेल area we have one BTS, that is base transceiver station, okay। if the person, अच्छा ये मोबाइल स्टेशन को यहाँ पे अलग से बताया है, वरना अगर देखा जाए तो आपका मोबाइल स्टेशन यहाँ पर हो सकता है, आपका मोबाइल स्टेशन यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, एनीवेयर, ओके। सो सपोज ये आपका मोबाइल स्टेशन है, तो इट विल कॉन्टैक्ट, सो फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल स्टेशन ये लोकेशन पे है, ओके। सो मोबाइल स्टेशन विल कॉन्टैक्ट फर्स्ट टू होम, आपका मोबाइल स्टेशन इस आपके BTS को कॉन्टैक्ट करेगा। ये वाला आपका जो मोबाइल स्टेशन है, इट विल कॉन्टैक्ट टू योर दिस BTS, एंड ये वाला मोबाइल स्टेशन है, ये भी कॉन्टैक्ट करेगा आपके BTS को, बिकॉज ये आपके रीजन में आता है। यहाँ वाला जो मोबाइल स्टेशन है, ही विल नॉट कॉन्टैक्ट दैट पर्टिकुलर बेस स्टेशन, ये जो आपका ये नियरेस्ट उसके लिए ये वाला है, ओके। तो ये हम लोगों ने क्लियर किया था पहले, ओके। अब वापस से जाते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पे। सो ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल में a BTS uses this channel to signal information to all the mobile station within the cell। so within the cell आपका जो BTS है वो क्या करेगा, अपने सारे मोबाइल स्टेशन को ब्रॉडकास्ट करता रहेगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, यानी जो सिग्नल इन्फॉर्मेशन भेजता रहेगा, सिग्नल इन्फॉर्मेशन भेजते रहेगा, तभी तो आपके मोबाइल में आपको नेटवर्क दिखाएगा 1.2.3 पॉइंट। तो अगर ये कंटिन्यूसली अगर ये सेंड नहीं करे, अगर ये कंटिन्यूसली ब्रॉडकास्ट नहीं करे आपका बेस ट्रांसीवर स्टेशन, दैट इज BTS, देन आपके मोबाइल के अंदर टावर जो आता है ना, आपके टावर्स बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, डंडी बोलते हैं, तो वो आपका आएगा नहीं, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, BTS क्या करता है, अपने रीजन में, अपने रीजन में जितने भी मोबाइल स्टेशन प्रेजेंट है सबको क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, ओके। जब सबको ब्रॉडकास्ट करेगा तो सबके मोबाइल के अंदर क्या आ जाएगा, नेटवर्क आएगा, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, all the mobile station will be able to get the network services properly, okay।
So what your BTS is doing, your BTS is uses this channel to signal, to send the information to all the mobile station within the cell. समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई कोई एक दो जन रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है आप लोग को? The first one, that is broadcast control channel. It uses this channel to signal the information to all the mobile station. ये क्या कर रहा है, अपने अपने रीजन के सारे मोबाइल स्टेशन को इंफॉर्मेशन या सॉरी सिग्नल सेंड कर रहा है. तो ये सिग्नल जब सेंड करेगा देन ओनली दीज मोबाइल स्टेशन विल बी एबल टू सी द नेटवर्क इन देयर मोबाइल फोन्स. ओके, आपको का रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं? एक ही रिप्लाई है, बाकी सब सो रहे क्या? ओके, अच्छा okay, thank you so much. If really you are getting the things, then it is okay. अगर नहीं समझ में आ रहा है then you can read this also and you can understand. Simple है, ज़्यादा इसमें complication नहीं है, बस जो है information आपको याद रखना है वो important ज़्यादा है. Okay, so we are in the second one, that is the control channel. मैं आपको using this Excel sheet में बता रहा हूँ, तो ये भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं. So this is the chart of the logical channel. The first one is the broadcast channel, broadcast control channel. And the broadcast control channel में information कहाँ से कहाँ सेंड हो रही है, आपके BTS से लेकर BTS to कहाँ सेंड हो रही है, all the mobile station. Okay, तो BTS to mobile मैं थोड़ा बोर्ड में लिखता हूँ, BTS to mobile station MS. Okay, समझ में आएगा हम लोग को कि BTS का यूज़ क्या है, सॉरी BCCH का यूज़ क्या है. आते हैं, अच्छा अभी जो BTS, आपका जो BTS है, so what kind of information this BTS is going to broadcast to all the mobile station which are present in his cell, okay, in itself. Okay, what kind of information your BTS is sending, is informing to all the mobile station which are present in the cell area. कौन सी information send करेगा, ये वाली information. Information transmitted in this channel is cell identifier. सबसे पहले तो कोई सेल का नंबरिंग होगा तो सेल का आइडेंटिफायर. देन ऑप्शंस अवेलेबल विद इन द सेल. आप इस एरिया के अंदर 1G 2G 3G 4G 5G क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल. ओके, बिकॉज देखो मैं काफ़ी सारे एरिया में, अपने मुंबई के एरिया में मैंने ट्रैवल किया था. आई थिंक 2 साल पहले की बात है. तो उस टाइम पे 4G नया नया लॉन्च हुआ था, शायद 4G नया नया आया था. तो उस टाइम पे मैं कुछ एरिया में गया, जैसे आपका तो जब आपका बटाला साइड में गया था, एक अंदर स्लम के लिए एरिया में चला गया था, वहाँ पर मुझे 4G नेटवर्क नहीं मिल रहा था. वहाँ पर मुझे सिंपल बस 3G जो अपना पहले आता था, एज नेटवर्क मिल रहा था. हाई स्पीड एच प्लस करके आता है, वो मुझे नेटवर्क मिल रहा था. ओके, सो अभी तो खैर हर जगह पे 4G हो ही गया है, तो प्रॉब्लम नहीं है. बट आपके आपके सेल के अंदर, आपके एरिया के अंदर कौन कौन से ऑप्शन, ज़रूरी नहीं कि आपके 2G 3G के फॉर्म में हो, कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं रिगार्डिंग योर नेटवर्क सर्विसेज. क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है विद इन दिस सेल. सेकंड इन्फॉर्मेशन. ओके, एंड फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल इनसाइड द सेल इन इट्स नेबरिंग सेल. तो बेसिकली कौन सी फ्रीक्वेंसी पे उन लोग ऑपरेट करते हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन उन लोग अपने अपने मोबाइल स्टेशन को भेजते हैं. ठीक है, तो मैं हूँ BTS. ओके, एंड द BTS एंड मेरे आसपास में बहुत सारे मोबाइल स्टेशन. ओके, सो आई विल सेंड इंफॉर्मेशन, आई विल ट्रांसमिट एंड आई विल ब्रॉडकास्ट सम इंफॉर्मेशन लाइक मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ और मैं किस फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा हूँ. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने मोबाइल स्टेशन को, जो मेरे आसपास में है, मेरे सेल एरिया के अंदर है, वो मैं अपनी ब्रॉडकास्ट करता हूँ. सो ऑल माई मोबाइल स्टेशन विल कम टू नो कि भाई ये जो बंदा है इसका सेल आइडेंटिफायर ये है और ये ऑप्शंस अवेलेबल, और वही ऑप्शंस हमको हमारा मोबाइल स्टेशन, हमारा जो स्क्रीन है, हम लोग को दिखाता है. ओके, so this is the first one, that is broadcast control channel. Okay, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल में क्या होता है, BTS ब्रॉडकास्ट करेगा, BTS ब्रॉडकास्ट करेगा किसको, अपने मोबाइल स्टेशंस को जो कि अपने सेल के अंदर आते हैं. याद रखो. आगे बढ़ते हैं. द सेकंड इज कॉमन कंट्रोल चैनल. ओके, द सेकंड इज कॉमन कंट्रोल चैनल. ओके, कॉमन कंट्रोल चैनल.
All the information regarding connection setup between MS and BTS is exchange via, देखो एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, आपको एकदम कुछ समझने की भी जरूरत नहीं है. So informations are in front of you only. All the information regarding connection setup between mobile station and BTS, BTS is exchange via the control channel. वापस जाते हैं हमारे इस पर, ठीक है. MS और BTS के बीच में जो कनेक्शन सेटअप होगा, इसके लिए डायग्राम अलग से रखा था लेकिन वो चला गया. तो आपके मोबाइल स्टेशन, आपका मोबाइल स्टेशन और आपका BTS दैट इज बेस ट्रांसीवर स्टेशन, दोनों के बीच में जो ये कनेक्शन होगा, तो कनेक्शन सेटअप की सारी इंफॉर्मेशन जो होगी, जो कनेक्शन सेटअप होगा, तो ये कनेक्शन सेटअप आपका ये कॉमन कंट्रोल चैनल के लिंक के थ्रू होगा. ओके, सो वापस आते हैं अभी. तो कॉमन कंट्रोल चैनल, ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग connection setup between the mobile station, connection setup between the mobile station and the BTS. आपने देखा डायग्राम में, तो दोनों के बीच में जो कनेक्शन सेटअप होगा, वो दोनों के बीच में कनेक्शन की जो इंफॉर्मेशन होंगी, वो जो एक्सचेंज होंगी, वो एक्सचेंज होंगी इस लिंक के थ्रू, दैट इज कॉमन कंट्रोल चैनल या इस चैनल के थ्रू. ओके, ये आवाज किसकी आ रही है भाई? someone has unmuted, I think so. किसी ने तो अनम्यूट किया है, इसके लिए ऐसी आवाज आ रही है. If someone has unmuted, then please mute yourself. Thank you. चलो ठीक है, आवाज आने दो. आप लोग को साउंड आ रहा है कुछ ऐसा, या फिर मुझे आ रहा है? अरे कहाँ मर गए, बोलो तो कुछ. हाँ नहीं ना, ओके ठीक है, चलो मुझे आ रहा तो कोई बात नहीं. नहीं सर. नहीं, चलो तो बोला कुछ. मतलब मुझे लगता है मैं कब्रिस्तान में बैठा हूँ, शमशान में बैठा हूँ लिटरली. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इज, हाँ, कॉमन कंट्रोल चैनल के बारे में मैंने जस्ट देखा. इट विल शेयर और इट विल एक्सचेंज ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कनेक्शन सेटअप. ओके, कनेक्शन सेटअप के बारे में, वो भी किस किस के बीच में, मोबाइल स्टेशन और BTS के बीच में जो कनेक्शन सेटअप होगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी वाया कॉमन कंट्रोल चैनल. अब आते हैं आगे. फॉर कॉल्स टुवर्ड्स एन मोबाइल स्टेशन. ओके, अगर आपका BTS, देखो थोड़ा सा सीन समझो. हाँ, क्या है, अगर आपका BTS, आप लोग मुझे भी देख सकते हैं साइड में, तो मैं इसमें गेस्चर कर रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा. अगर आपका BTS, मैं BTS को राइट में लिया बिकॉज BTS आपका सेकंड इस पर है, पहले आपका मोबाइल स्टेशन. ओके, अगर आपका BTS आपके मोबाइल स्टेशन को कुछ कम्युनिकेट करता है, यानी कुछ वहां से कुछ सिग्नल इन्फॉर्मेशन आती है आपके मोबाइल स्टेशन को, तो वो उसके लिए भी हम लोग एक स्पेसिफिक चैनल यूज कर सकते हैं, दैट इज पेजिंग चैनल, इसको बोलते हैं PCH. ओके, तो एक हम लोग ऐड करेंगे अपने इसके अंदर, वन इज PCH. ओके, so PCH is basically used for call towards mobile station to, नहीं, BTS to MS. ओके, तो BTS वाला, इसको मैं यहाँ के बजाय यहाँ लिखता हूँ तो ये अच्छा रहेगा. तो BTS वाला जब इंफॉर्मेशन भेजेगा मोबाइल स्टेशन को रिगार्डिंग द कॉल कंट्रोल, ओके, तो उसके अंदर फिर आपका पेजिंग चैनल यूज होगा, स्पेसिफिकली पेजिंग चैनल यूज होगा. ओके, और यहाँ पर देखो नीचे, इफ यहाँ पर ये रॉन्ग है. इफ अ मोबाइल स्टेशन वांट्स टू सेट अप अ कॉल, इट यूजेस रैंडम एक्सेस चैनल. ओके, तो ये दो चैनल आपको याद में रखने हैं. अगर आपका कनेक्शन मोबाइल स्टेशन से BTS को जा रहा है या BTS से मोबाइल को आ रहा है, तो मोबाइल स्टेशन वांट्स टू सेट अप अ कॉल, देन रैंडम एक्सेस चैनल यूज होगा. ओके, टू सेंड द डेटा टू द BTS. ओके, तो ये जो आपके चैनल्स है, तो ये आपके किसके लिए, MS और BTS वाइस वर्सा के लिए. सो पेजिंग चैनल और RACH, तो ये आपका RACH. ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर अगर नहीं भी लिखे चलेगा, वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे. तो आपके पेजिंग चैनल और रैंडम एक्सेस चैनल, ये तो आपके यूज हो रहे हैं BTS और MS के बीच में. The RACH, that is random access channel, implements multiple access. Okay, it implements multiple access. All mobile stations within the cell may access this channel using slotted aloha. आपको तो वो याद ही होगा, slotted aloha वाला. slotted aloha एक आपका सिंपल वाला aloha था, slotted aloha था, फिर आपका CSMA CD था,
देन बाद में CSM में CS था, वो सारे के सारे हम लोगों ने मीडियम एक्सेस में देखे थे। मैंने आपका जो था ना, कौन सा था वो, डेटा लिंक लेयर था शायद, उसके अंदर ही देखे थे शायद। तो आपका जो अलोहा बेसिकली इसमें क्या होता है, आपका जो मीडियम है, आपका जो मीडियम है उस मीडियम के अंदर मल्टीपल लिंक्स है। मैंने आपसे अभी अभी किया डिस्कस मैंने कि यू आर हैविंग अ मीडियम, ओके, इन दिस मीडियम यू आर हैविंग मल्टीपल चैनल्स, ओके, मतलब मल्टीपल आपके पास में लेन्स है, मल्टीपल लेन्स अवेलेबल है, ओके। तो उसमें आपने स्लॉट बना के रखे और स्लॉट के अंदर हर कोई अपना कम्युनिकेशन, हर कोई अपना ट्रांसमिशन कर सकता है, ओके। तो यहाँ पर आपका जो रैच है, दैट इज योर रैंडम एक्सेस चैनल इम्प्लीमेंट्स मल्टीपल एक्सेस। अच्छा, आप लोग बोलेंगे सर आपके आपके रीजन में, आपके रीजन में कोई एक मोबाइल स्टेशन थोड़ी है। अच्छा, पहले वापस आते हैं यहाँ पर, थोड़ा आप लोग को मैं जिस पॉइंट पे फोकस करवाना चाह रहा हूँ वो देखा। इफ mobile station wants to set up a call, okay, if a mobile station wants to set up a call then random access channel यूज होगा। अब जरा थोड़ा सा आप लोग अगर दिमाग लगाएंगे तो आपके पास में पूरे रीजन में कोई एक मोबाइल स्टेशन है कोई एक ही है? नो, यू आर हैविंग न्यूमरस मोबाइल स्टेशन विच आर वर्किंग इन द सेम एरिया, ओके। अगर बहुत सारे, अगर कभी आपके मोबाइल स्टेशन है, और ऑब्वियसली रहना ही है, तो अगर आपके इतने सारे मोबाइल स्टेशन अगर कभी एक टाइम पे कॉल करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास में क्या करेगा आपका रैच, क्या करेगा, दैट इज रैंडम एक्सेस चैनल। इट इम्प्लीमेंट दी मल्टीपल एक्सेस और मल्टीपल स्लॉट्स, ओके, यूजिंग द स्लॉटेड अलोहा। तो आपके मीडियम को डिवाइड करेगा मल्टीपल स्लॉट्स के अंदर, और हर स्लॉट में आपका एक एक मोबाइल स्टेशन कम्युनिकेट करेगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वापस आगे आगे आगे। फॉर फॉर दिस फॉर एग्जांपल ये आपका रीजन है, ओके। इस रीजन में आपका कोई एक मोबाइल स्टेशन है नहीं, आपके पास में मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ मोबाइल स्टेशन आर वर्किंग इन द सेम एरिया, ओके। इफ वन मोबाइल स्टेशन वांट्स टू सेंड द डेटा और सेंड सम सिग्नल टू द BTS, ओके, ये आपका मोबाइल स्टेशन है और इसको अगर सेंड करना है तो ये क्या करेगा, रैंडम एक्सेस चैनल यूज करेगा। लेकिन रैंडम एक्सेस चैनल सिर्फ अगर कभी एक के लिए सेटअप किया गया है, तो अगर एक के लिए सेटअप किए तो बाकी बाकी लोग कॉल नहीं कर पाएंगे, बाकी लोग BTS को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। इसको मैं तो यहाँ पे शो करता हूँ मैं, ये आपका रीजन है, सॉरी, या आपका रीजन है, एंड नंबर ऑफ मोबाइल स्टेशन आर वर्किंग, ओके, नंबर ऑफ मोबाइल स्टेशन आर वर्किंग। तो अगर फॉर एग्जांपल इसका कॉल चलो मैंने BTS से कनेक्ट कर दिया, ओके, तो बाकी लोग को भी अगर करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, तो क्या होगा फिर? तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, एक मीडियम, ये जो आपका मीडियम है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग अ स्लॉटेड अलोहा। तो यहाँ पर आपके जो पूरा जो चैनल है, पूरा जो मीडियम है, दैट विल बी डिवाइडेड बाय मींस ऑफ द स्लॉटेड अलोहा इन अ स्लॉटेड, ठीक है। तो आपका एक स्लॉट, फिर दो स्लॉट, फिर तीन स्लॉट, चार स्लॉट, ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट्स आर अवेलेबल। सो मल्टीपल मोबाइल स्टेशन कैन मेक अ कॉल यूजिंग दिस स्लॉट, ओके। ये कॉल ये कॉल ये कॉल आपके BTS को कांटेक्ट कर सकते हैं। So I just want you to focus on the random access channel. What it is doing basically, it is making use of the slotted Aloha to make the slot in a medium so that multiple mobile station will be able to communicate with the one BTS in the particular region. बिकॉज आपको पता है आपके पूरे रीजन में एक ही BTS है खाली, ओके। ऐसा तो नहीं कि बाजू वाला आके हेल्प करेगा, तो एक ही BTS को, सारे मोबाइल स्टेशन को एक ही BTS को कॉल करना है, यानी एक ही BTS को कम्युनिकेट करना है। तो एक BTS अगर कभी उन सारों की कम्युनिकेशन को सुनना है तो RACH, रैंडम एक्सेस चैनल, मीडियम को स्लॉट में डिवाइड करके सबकी कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट लेना, ओके। वापस आते हैं यहाँ पर, हाँ, तो रैंडम एक्सेस चैनल, ओके। अब आते हैं आगे आपके, दीज आर दी एक्स्ट्रा चैनल, जहाँ तक हमारा था ये हो गया। एंड दीज आर दी एक्स्ट्रा चैनल्स विच आर यूज्ड। वन इज द डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, तो लिखते आते हैं पहले, वन इज द डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, ओके। उसके बाद में आपका है स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, SDCCH। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा उतना कभी पूछा नहीं है, लेकिन लॉजिकल चैनल अगर कभी स्पेसिफिकली आपको पूछ लिया, या अगर आपको पेज भरना है, सो यू कैन ऐड दिस टॉपिक, बिकॉज इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर द 10 मार्क्स एंड, और अगर कभी उसमें खाली इतना बोलते हैं GSM आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करो, या GSM आर्किटेक्चर एक्सप्लेन GSM आर्किटेक्चर,
10 मार्क के लिए। हम लोग इतने सुस्त होते हैं कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। तो अगर आपको पूछा तो फिर आप इसमें कभी थोड़ा सा पार्ट डाल सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट लॉजिकल चैनल्स व्हिच आर यूज्ड इन द जीएसएम। ओके, तो एटलीस्ट आपको एक छोटा सा आइडिया भी इससे मिल सकता है। तो first is these are the extra channels, that is the dedicated control channel DCCH, and then SDCCH, that is standalone dedicated control channel। then उसके बाद में है slow associated dedicated control channel, तो SACCH। उसके बाद में लास्ट वाला है फाइनली, अगर मोर इंफॉर्मेशन इज नीड टू बी ट्रांसमिटेड देन वी हैव अ फास्ट एसोसिएटेड डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल FACCH। ओके, देखो ये एक्सेल शीट बनाने का पर्पस ये है कि आफ्टर लर्निंग so many logical channels you won't be able to remember any a single one। okay, now by looking at this diagram, at this sheet, you will easily come to know that कि हाँ, लॉजिकल चैनल ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक में फुल रेट हाफ रेट यूज फॉर कैरिंग द डेटा और वॉइस। ओके, एग्जांपल वॉइस। एंड कंट्रोल चैनल, उसके अंदर इतने सारे चैनल होते हैं, BCCH, CCCH, देन PCH, RACH। तो का BCCH आपका ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपका BTS ब्रॉडकास्ट करता है, CCCH आपका कॉमन कंट्रोल चैनल के अंदर आपके PCH है, RACH है। तो PCH आपका क्या करेगा, अगर आपका BTS से MS को जा रहा है स्पेसिफिक चैनल, देन बाद में MS से BTS को जा रहा है तो RACH। ओके, मतलब BTS से MS को जा रहा है तो RACH है। ओके, उल्टा बोला। Then we have DCCH, that is dedicated control channel। Dedicated control channel, while the previous channels all have been unidirectional, bidirectional आपको पता है, तो सारे के सारे यूनिडायरेक्शनल। द फॉलोइंग चैनल्स आर बाई डायरेक्शनल नाउ विच आर अंडर द डेडिकेटेड चैनल। तो आप अभी देखोगे स्टैंड अलोन डेडिकेटेड चैनल, स्लो एसोसिएटेड डेडिकेटेड चैनल, फास्ट एसोसिएटेड डेडिकेटेड चैनल। तो आपका जो डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल है दे आर बाई डायरेक्शनल। यहाँ पर हम लोग को मेंशन करना हमारा बनता है कि ऑल दीज चैनल्स आर बाई डायरेक्शनल। तो ये सारे के सारे हमारे जो चैनल्स है दीज आर बाई डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल। ओके, बाय डायरेक्शनल चैनल सिर्फ आपके समझने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखा हूँ। ओके, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। दीज आर यूनी डायरेक्शनल। ओके, सो दीज आर यूनी डायरेक्शनल चैनल एंड दीज आर बाय डायरेक्शनल चैनल। अब इसके अंदर का तो आप लोग खुद अंदर से रीड कर सकते हैं। So the first one, that is a dedicated control channel. These channels are the bidirectional. The previous one we have used all were the unidirectional channel। आते हैं, as long as the mobile station has not established a TCH, तो ये थोड़ी अलग-अलग सिचुएशन वाले हैं, अलग-अलग सिचुएशन वाले चैनल्स हैं। As long as an MS has not established a TCH, traffic control channel। याद है आपको फर्स्ट वाला, the TCH traffic control channel is used to carry or used to transmit the user data। okay, मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। so TCH, that is traffic control channel, is used to transmit the user data। okay, अब पढ़ो। as long as mobile station has not established the traffic channel to send the data with the BTS, अभी तक मोबाइल स्टेशन ने BTS के साथ में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं किया है, it uses the standalone dedicated control channel। तब तक के लिए, जब तक के वो दोनों का कम्युनिकेशन का लिंक एस्टैब्लिश ना हो, जब तक के वो TCH को एस्टैब्लिश ना करे, जब तक के लिए स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल यूज होते हैं। ओके, स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल्स आर, दैट्स व्हाई बाई डायरेक्शनल। ओके, तो आपने देखा होगा हमने PTS से MS के लिए अलग यूज किए, भी आपके MS से PTS के लिए अलग यूज किए, दैट इज पेजिंग चैनल, एंड RAC, दैट इज रैंडम एक्सेस चैनल। ओके, तो वो यूनिडायरेक्शनल थे, इसके लिए दो चैनल यूज करना पड़े, बट उसके पहले वाला जो सिचुएशन है वो ये है। तो we can use the standalone dedicated control channel, that is SDCCH, with a low data rate of 782 bits per second। small baba question, standalone dedicated control channel या dedicated control channel के अंदर आपका जो लो डेटा, हम लोग को लो डेटा रेट प्रोवाइड करता है ऑफ 782 बिट्स पर सेकंड फॉर सिग्नलिंग, फॉर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर सिग्नलिंग पर्पस। and this can compromise authentication, registration or other data needed for setting up the TCH। okay, तो obviously आप जब TCH establish करेंगे, TCH किसके लिए, डेटा सेंड करने के लिए जब establish करेंगे, तो आप उसमें authentication, registration
प्राइवेसी वगैरह हर एक चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर आपको आपको वो चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएंगी। Each TCH and SDCCH has a low associated dedicated control channel. तो यहाँ पर हमारे पास में slow associated dedicated control channel है और fast associated dedicated control channel है। लंबे लंबे नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। Associated with it which is used to exchange system information. तो यहाँ पर देखो भाई, जो है वो एक्सचेंजिंग के लिए, सिस्टम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए यूज हो रहे हैं, such as the channel quality, signal power level and all this. Okay, तो ये हो गया आपका slow associated dedicated control channel used to send or used to exchange system information. And then finally, if more signaling information needs to be transmitted, then your traffic channel already exists. GSM uses the fast associated dedicated control channel. So एक fast वाला भी है. The fast FACCH uses the time slot which are otherwise used by the TCH. तो ये आपका जो TCH है और आपका FACCH है, so ये थोड़ा closely related भी है. And this is necessary in the case of handovers where the BTS and MS have to exchange larger amount of data. अब देखो, ये जो स्पेसिफिकली यूज हो रहे हैं ये हैंडओवर के लिए भी यूज होते हैं, बिकॉज इन हैंडओवर लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर रिलेवेंट डेटा, जो यूजर की इंफॉर्मेशन लोग हैंडओवर करते हैं ना, one region, one cell is going to hand over the user relevant information to the other region, because वो आपका जो यूजर है वो आपके रीजन में नहीं है अभी, वो दूसरे रीजन में चला गया, तो हैंडओवर हो रहा है. तो जब हैंडओवर होगा तो हैंडओवर के होते समय आपको उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी आपको एक्सचेंज करनी है अपने नेबरिंग सेल के साथ, बिकॉज वो नेबरिंग सेल में गया है. ओके, नेबर सेल के पास में गया है, तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन भी जब होती है तो उसके लिए भी फास्ट एसोसिएटेड डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल यूज होता है. ओके, तो इनके आपस में कम्युनिकेशन के लिए आपका फास्ट एसोसिएटेड है और स्लो एसोसिएटेड है. ओके, so these channels are used for specific for dedicated for specific task only. Okay, तो जस्ट आपको अच्छे से इसको याद रखना है. लॉजिकल चैनल का डायग्राम, कि भाई आपका जो लॉजिकल चैनल डायग्राम है उसमें आपके बेसिकली दो ग्रुप्स हैं. ओके, यू हैव टू ग्रुप. One is the traffic channel, second is the control channel. In traffic channel, you have two links. One is the full rate traffic channel, second is the half rate, having the speed mentioned over here. Second is control channel for controlling the access of the medium. आपके मीडियम को, आपके जो भी जिससे आपका डेटा जाने वाला है उसको क्या करेंगे, उसको कंट्रोल, उसके एक्सेस को, हर कोई आ रहा एक्सेस कर रहा है, हर कोई आ रहा एक्सेस कर रहा है, ऐसा नहीं करने देना. आपको उसके एक्सेस को कंट्रोल करना है और वो कंट्रोल होगा आपके कंट्रोल चैनल से. ओके, इन दैट कंट्रोल चैनल वी आर हैविंग BCCH, TCCH, then PCH, RACH. Then we have a bidirectional logical channel which are dedicated control channel in which we are having slow. एक तो आपका स्टैंड अलोन है, सेकेंड आपका स्लो है, थर्ड है फास्ट है. ओके, तो ये आप अगर याद रखेंगे तो एटलीस्ट आप लोग एग्जाम में इसके बारे में भी लिख सकते हैं. ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर. इन द नेक्स्ट सेशन विल अंडरस्टैंड. ये भी आपका टॉपिक उतना पूछता नहीं है, बट फिर भी मैंने एज अ टॉपिक, एज अ GSM आर्किटेक्चर मैंने मेंशन किया. ओके, इनका कहना ये है कि दीज आर द डिफरेंट प्रोटोकॉल, दिस इज द प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर बेसिकली, and you will find all the things are over here. This is the mobile station. If you will compare this diagram with your GSM architecture, then on the left hand side we are having mobile station ka section. Okay, so these are different protocol which are used inside the mobile station section, the CAM, MM, RR, LAPID, radio. So all these are the protocol which works on the mobile station section. Then we are having BTS. ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं चाहिए तो इसको अभी हम लोग क्लियर कर लेते हैं. द नेक्स्ट सेक्शन इज BTS, दैट इज बेस ट्रांसीवर स्टेशन. आपको पता है आपका जो नेक्स्ट होता है वो BTS होता है. लेट मी रिमाइंड द डायग्राम अगेन, तो थोड़ा सा समझने में और आसानी हो जाएंगी. सो दिस इज द मोबाइल, मैं क्लियर, हाँ, सो दिस इज द मोबाइल स्टेशन वाला सेक्शन. देन ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये BTS वाला सेक्शन है, सेकेंड सेक्शन. अच्छा, इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होने वाले हैं वो प्रोटोकॉल इसमें मेंशन नहीं किया है, उसका लिए अलग से डायग्राम है. ओके, वही डायग्राम जो मैं आपको भी बता रहा था. ओके, सो दिस इज द BTS सेक्शन, दिस इज द BSC सेक्शन, and this is the MSC section. Okay, so all these sections will be available in that diagram. So coming to that diagram,
So this is called as the protocol architecture. Whatever protocols which are used, which are getting used, which are being used inside each and every section which are mentioned, they are mentioned over here. So first is mobile station section, जिसमें ये वाले सारे protocols use होते हैं. Second आपका है BTS, that is base transceiver station वाला section, and you will find the interface over here. ठीक है, ये interface and ये वाला. These are the three basic major interfaces which are used in the GSM आर्किटेक्चर. इसके अलावा भी इंटरफेसेस यूज होती है जो हम लोगों ने प्रीवियस के अंदर देखे थे. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये और ये तीन इंटरफेस को छोड़ के और भी बहुत सारे इंटरफेस यूज होते हैं. ओके, यू विल फाइंड ऑल दिस इंटरफेसेस ओवर हियर. सॉरी, सो ये इंटरफेस, बट हमारे पास मेजर इंटरफेसेस ये है. Then you have in BTS you are having RR, LAPID, BTS. So all these are the different protocols. इनको कवर करने जाएंगे तो एक अलग ही है. ओके, एंड लिटरली हमारे पास में जो टाइम है वो टाइम के हिसाब से हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो जितने इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है वो हम लोगों ने मेंशन किए. दिस इज द BSc सेक्शन एंड दिस इज द MSc सेक्शन. ओके, सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कुछ है और उसके बाद में दो टॉपिक है छोटे छोटे, CM एंड MM. आई थिंक CM और MM आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे. CM इज द कॉल मैनेजमेंट, सेकंड इज द MM, दैट इज आपका मोबिलिटी मैनेजमेंट. RR भी है आपका. RR इज नथिंग बट योर, RR कहाँ पर है, RR is radio resource management. Okay, so all these kind of protocols are used over here. तो देखो आप, you will find CM and MM are almost used. यहाँ पर CM and MM यहाँ पर भी है, CM and MM यहाँ पर भी है. Okay, so other protocols are also used over here. उनका explanation भी है. So I can keep this topic for you also. आप लोग इसको बाद में जिस आपको इसका डायग्राम याद रखना है, अगर पूछा तो प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर अगर पूछा तो ये डायग्राम ड्रॉ करके इसमें कि आपको सारे के सारे आप लोग एक्सप्लेन नहीं. अगेन आई एम टेलिंग यू, you cannot explain and you cannot write the explanation of all the protocols which are mentioned over here in the exam also and over here also I can explain. Okay, तो जो important वाले जैसे कि CM है, MM है, RR है. Okay, so only these can be explained with the help of these 2-3 slides we can explain. Okay, so let us tomorrow we'll try to explain and we will try to understand these protocol that which comes under the protocol architecture. Thank you so much. आज के लिए इतना, एंड आई विल सेव दिस वन और उसको बाद में आप लोग को भी मैं सेंड कर दूँगा. ओके, थैंक यू सो मच. ज़ारा शेख.